नहीं स्कूल थोड़ी स्टार्टिंग क्लास। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। तो दो टाइप के स्ट्रेस क्या क्या होते हैं बताओ कावेरी। Stress, longitudinal. Sorry, longitudinal में there is either tensile or one is tensile, the other one's name I don't remember. Then, Compression. Sorry, Compression. compression, and then shear stress, which makes it an like tangential, which is like at an angle. Then hydraulic shear stress, which is like the volume changes, but or the shape remains the same. Yeah, what is stress? Force upon area. Force upon area Okay. cross section. So it all depends upon which area are you taking, है ना? Which force are you taking, rather the direction of force. So force or area, अगर force is normal to the surface, then it is longitudinal. And if force is along the surface, then it is कौन सा stress? बोलो people. हाँ, shear stress. और अगर वॉल्यूमेट्रिक है, अगर पूरे वॉल्यूम को ही तुम फोर्स दबा के कम कर रहे हो तो फिर वो वॉल्यूमेट्रिक हो गया स्ट्रेस। अभी लॉन्गिट्यूडनल में या तो तुम उसको स्ट्रेच कर सकते हो या तो तुम उसको दबा सकते हो, तो टेंसाइल हो गया या कंप्रेशन हो गया। बट स्ट्रेस का फॉर्मूला हमेशा रहेगा फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूमेट्रिक में कौन सा एरिया लेंगे हम? पूरा एरिया, है ना? तो दैट ओके। स्ट्रेन बताओ मेरा अग्रवाल। Yes, sir. Strain is क्या होता है स्ट्रेन? sir. 1 second. Strain is like when there's deforming force, then when there's change in compression upon the original compression of the body. Original compression, original length. Original length of it. So it's not just length also, it can be area, it can be volume, right? So it is change in configuration upon original configuration. So it is, relative change in configuration. Configuration could be length, area, volume, anything. So it is delta L by L. That is what strain is, or delta A by A, or delta V by V, right? So that is what strain is. Now, third part of this chapter was Young's modulus. ये पढ़ा था ना हमने, of elasticity पढ़ा था हमने Young's modulus last time. So it is the material property. So we did Hooke's law. हाँ. We did Hooke's law. Same ही. तो Hooke's law में ही वो है ना. तो Hooke's law. What does Hooke's law say? So the extension is directly proportional to the load applied, and the load is the force here they are talking about. हाँ. तो basically जब कोई तुम solid लोगे, तो वो solid पे जब तुम force लगाओ, तो पहले तो वो solid elastic zone में रहेगा. Elastic zone का मतलब कि जब उस पे force लगाएंगे और जब force छोड़ देंगे तो वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएगा, अपने configuration पे वापस आ जाएगा, जगह नहीं, अपनी configuration पे वापस आ जाएगा. So that is the elastic phase, है ना? उसके बाद आएगा plastic phase, जहां पे तुम फोर्स लगाए हो, जहां जितना डिफॉर्म हुआ वो डिफॉर्म ही रहेगा, वापस नहीं जाएगा. उसके बाद आएगा फ्रैक्चर, जहां पे वो टूट जाएगा, फटीग, है ना, टूट गया. उसके बाद तुम फोर्स लगाते रहो, वो डिफॉर्म नहीं होएगा, टूट चुका है. ठीक है, तो जब वो इलास्टिक फेज में है तब हुक्स लॉ फॉलो करता है. इसका मतलब जब इलास्टिक फेज में है तो जितना फोर्स लगाओगे उतना डिफॉर्मेशन होगा. तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन is going to be constant, or stress is directly proportional to strain, or strain is directly proportional to stress. कि जितना ज्यादा स्ट्रेस लगेगा उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, उतना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा, है ना? Okay, so that's it. चलो, now let me continue from there. Sir, I have a question. हाँ जी. The modulus of elasticity doesn't depend on the quantity of the given material, right? Yeah, it's a material property. ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुंचे थे.
क्वांटिटी पे क्यों नहीं डिपेंड करता? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द मटेरियल स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, चलो. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, ये किया था तुम लोगों ने सवाल, आई थिंक ये किया था ना. फिर मैंने बोला था तुम लोग को ये पूरे पढ़ के आने वापस. शियर स्ट्रेन क्या होता है? tan थीटा विच इज डेल्टा एल बाय. ये सब नोट्स बनाए थे ना पिछली बारी, तो रिवाइज कर लेना, और मुझे नहीं लगता तुम लोगों ने रिवाइज किया. चलो अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये वाला. When a wire is stretched by a load in figure A, it is seen that for a small value of load, the extension produced in the wire is proportional to the load. तो जो कम लोड डालेंगे तब तक वायर जो है वो स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तभी वो इलास्टिक लिमिट पे. ठीक है, फर्स्ट इन ड्राइंग, ये ड्राइंग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ. द स्ट्रेस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू पॉइंट ए. ये पॉइंट ए तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, अभी ड्रॉ नहीं करो, अभी इधर देखो फिर ड्रॉ कर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले ध्यान से देखो, समझो, उसके बाद ड्रॉ करने के लिए मैं टाइम दूंगा. So thus Hooke's law is fully obeyed in this region. The point A is known as the point of proportional limit. तो ये point of proportional limit है. ठीक है, अब ड्रॉ करो, ये स्ट्रेस स्ट्रेन और पॉइंट A तक ड्रॉ करो. A तक ड्रॉ किया? So do we have to write like proportional limit and all of that also? Yes, A तक जो जो चीजें लिखी है सब लिखना है A तक. ऐसे साइड में लिखे तो चलेगा ना कि like नहीं, बड़ा बनाओ ना, बड़ा point पूरे A. पेज में बनाओ, बड़ा सा पेज, एक पूरे पेज में बनाओ ताकि तुमको समझने के लिए आसानी हो. पूरा एक फुल पेज में बनाओ उसको. हो गया? तो एक लाइन खींच लेना स्केल से O से लेके A तक. उसमें वो इलास्टिक बिहेवियर दिखाएगा. और A है प्रोपोर्शनल लिमिट. यहां तक प्रोपोर्शनल था, अब प्रोपोर्शनल नहीं रहेगा. हो गया? So we write those pointers also, right, along with the diagram. What pointers? The in drawing a stress versus strain graph, like the first para that you said. नहीं, ये अभी मत लिखो, अभी सिर्फ ड्रॉ करो ताकि जब मैं समझाऊं तो उसको तुम आगे ड्रॉ करते जाओ, तो तुम्हें कुछ डाउट आएगा. उसके बाद तुम ये सब भी लिखना, पॉइंटर्स भी बाद में लिखो.
Okay, then done. ओके हो गया एवरीवन? तो देखो सी ओ टू ए, ये क्या इलास्टिक बिहेवियर दिखा रहा है, इसका मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे तो इलास्टिक है ही बट प्रोपोर्शनल भी है। फिर ए टू बी में क्या है, ए टू बी में वो इलास्टिक है बट प्रोपोर्शनल नहीं है। तो यहाँ पे चेंज तो होता है, तो क्या ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है, कम स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है, एज यू कैन सी, है ना, क्योंकि इस तरफ बेंड हो रहा है तो इसलिए कम स्ट्रेस में ज्यादा स्ट्रेन हो रहा है। इसका मतलब कम स्ट्रेस कम फोर्स में भी बहुत इलोंगेशन होएगा, बट अब ये प्रोपोर्शनल नहीं रह गया, ठीक है। और ये इलास्टिक लिमिट है, बस यहीं तक इलास्टिक था वो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देख लो, when stress is increased beyond A, then for small stress there is large strain. Okay, when the load is gradually removed between points O to B, the wire returns to its original length. O से लेके B तक वो इलास्टिक है, इसका मतलब धीरे धीरे अगर तुम लोड हटाओगे तो वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा B तक, ठीक है। So this particular point is called yield point or elastic limit. तो ये B और C, सॉरी अभी C भी बता देता हूँ मैं। तो हाँ, ए तक इलास्टिक है या फिर बी तक इलास्टिक है? अभी मैंने क्या बोला, बट लाइक देन व्हाई इज इट चेंजिंग लाइक फ्रॉम ए टू बी? मैंने बोला ना B तक इलास्टिक है लेकिन A तक प्रोपोर्शनल भी है, तो A तक इलास्टिक प्लस प्रोपोर्शनल है, A से B में इलास्टिक है बट प्रोपोर्शनल नहीं है। मींस स्ट्रेस इज ग्रेटर और स्ट्रेन इज ग्रेटर? स्ट्रेन इज ग्रेटर ना, यहाँ देखो ना इस तरफ बेंड हो गया ना राइट की तरफ, इसका मतलब कम स्ट्रेस में भी ज्यादा स्ट्रेन मिल रहा है उसको। तो पहले स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे तो उतना ही स्ट्रेन होता जाएगा, अब थोड़ा सा भी फोर्स दोगे तो बहुत ज्यादा इलोंगेट होगा, उसके बाद प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्स, इफ द स्ट्रेस और लोड इंक्रीजेस बियॉन्ड पॉइंट बी, द स्ट्रेन फर्दर इंक्रीजेस। This increase in strain represented by BC part of the curve. Now, if the load is removed, the wire does not regain its original length, but the increase in the length of the wire is permanent. In other words, there is permanent strain equal to OO dash in the wire, even when the stress is zero. ठीक है, OO dash, हाँ, तो ये इतना स्ट्रेन हो गया अब उसके अंदर क्योंकि वो परमानेंट हो गया, क्योंकि वापस नहीं आएगा। The permanent strain the wire is given is known as permanent set. Okay. Now, as the stress beyond C is increased, there is large strain in the wire. This large increase in the strain for the small stress is represented by C to D. तो जैसे जैसे तुमने थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस दबाया, वो और स्ट्रेन फटाफट उसका बढ़ते जा रहा है, बट वो वापस कभी नहीं आएगा। C to D. The wire breaks at point D, which is also known as fracture point. अब यहाँ पे fracture हो गया, टूट गया वो। The material of the wire from point C to point D shows plastic behavior. C से लेके D तक plastic behavior है और plastic deformation. The stress needed to cause the actual fracture of the material is known as breaking stress or ultimate tensile stress. ठीक है? Okay. खत्म? Sir, I have a question. हाँ. So, like, if D amount is the needed stress for the fracture point, then like there's a bump also na before D. So why doesn't break tabhi? Why does it break? Like when the stress is at point D, Yeah. the object will break, right? It will fracture. But there is more stress before D also, no? Like Oh, where the अच्छा. arrow So is you're crossing talking before. about कि उतने यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे ज़्यादा force है. That's a good question. So it's not just Yeah. breaking because of force, right? It's also breaking because of the strain. तुमने उसको इतना thin कर दिया है, strain कर करके कि अब वो टूट सकता है. That's why. तो वो कम होने पे क्यों उठ रहा है? उस it can break at that point also, right? नहीं, but यहाँ पे thin नहीं था ना. It had not elongated enough to break. एक particular stress और strain पे ही break होएगा वो. So after stress has like gone more than point C, it won't become normal, right? In the normal position. Yeah, this is plastic. So I Yeah. didn't understand O dash. What is its significance?
O dash is, so A तक क्या होएगा कि A B तक, इनफैक्ट B तक क्या होएगा, इलास्टिक, तो इलास्टिसिटी। तो जितना भी स्ट्रेन था, जितना भी इलोंगेट किया, अभी धीरे धीरे लोड हटाओगे तो वापस चला जाएगा, राइट। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो वापस नहीं जाएगा, प्लास्टिक। उसके बाद वो प्लास्टिक हो जाएगा। तो वही जो स्ट्रेन है वो उतना स्ट्रेन ही रहेगा हमेशा, क्योंकि डेल्टा एल विल नॉट चेंज, विल नॉट रिड्यूस। सो वो जो पॉइंट यहाँ पे होएगा बीसी के बीच में, यहाँ कहीं पे जो इलोंगेट एक बार हुआ फिर वो वापस नहीं जाएगा, तो दैट इज ओ डैश विच इज परमानेंट सेट। लिखा भी होगा इधर, see, in other words, the permanent strain equal to OO dash in the wire even when the stress is zero। अभी OO dash इतना स्ट्रेन हो गया, अब अगर यहाँ से जीरो कर देंगे हम स्ट्रेस को, कोई स्ट्रेस देंगे नहीं, तो भी इतना तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया ना। आया I didn't get it, so can you repeat? अभी भाई बी के बाद अगर तुमने इसको और स्ट्रेस दिया तो वो इलोंगेट हो गया, उसमें डेल्टा एल आ गया। अब तुम उसमें फोर्स लगाना बंद कर दोगे तो डेल्टा एल कम हो गया क्या? No. So that is permanent deformation ना। Oh, so after that it's plastic, so now it's not going to go back to the original state. हाँ, so even if there is no force, the deformation will remain like Okay, that, so got then it. the strain Yeah. will be that permanent, so that is permanent Understood. set। ठीक है, अब पूरा बता दिया मैंने, तो एक काम करो तुम लोग इसको ड्रॉ कर लो और सारे पॉइंट्स नोट करो। I'll give you 5 minutes to do this. Once you're done, let me know. So why is there like a dashed line from A to O dash? I have no idea. I don't know what that, Dash lies And one between more B and C or A and C? B and C, right? which O dash is lying between B and C, right? O dash lies between B and C, yes. It will lie, in fact, yeah, right after B. And so why is the elastic limit called yield point? Why is elastic limit called yield point? क्यों बोल सकते हैं उसको? Because it yields till there, right? The more stress you give, the more it will yield. That's what yield means. It will give. So do we have to note down the pointers also now? Yeah.
So could you scroll to point 4? Point. So can you scroll down a bit, like down? तुम लोग के पास तो ये है ना बुक, कर लो नोट वहां से. सो बेसिकली यील्ड पॉइंट का मतलब है ए से लेके, अभी ये यील्ड पॉइंट है ना बी, तो यहां से यील्डिंग बहुत ज्यादा होती है. That's what is written here also. In the yield region, strain is 50 to 20 times those that take place up to the proportion. तो 15-20 गुना ज्यादा yield होता है. हुआ क्या? Done.
Done. Last point, sir. Last point, sir. Okay. Sir, how many more classes will this chapter take? One. We'll try to finish it today itself. Why? Because like the school has finished oscillation and all that, so I'm just asking because school is going to start again. School has finished what? Oscillation wala chapter, I don't really know the name. Done. Done, sir. पक्का हो गया? Yes, sir. Done. Okay. So this is the breaking stress for these materials. 22 into 20 power 8 Newton per meter square. That's the amount of force it takes to break, something like this. Do we need to basis- remember these values? No. On the basis of the elastic and plastic properties, materials can be classified in two ways. One is ductile. Ductile क्या होता है? You can bend it into a wire. You can make it into a wire. Yeah, you can draw wire out of it. Draw wire का मतलब क्या हो गया कि इसको बहुत stretch कर सकते हो, है ना? तभी तो wire बनेगा. So materials that have large plastic range of extension are called ductile. क्योंकि इलास्टिक में अगर स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, तुम खींचोगे तो छोड़ोगे वापस चला जाएगा. प्लास्टिक में रहेगा तो बहुत लंबा खींच सकते हो ताकि अपनी ही उसमें रहे, कॉन्फ़िगरेशन में रहे वायर की, टूटे नहीं. जल्दी टूट जाएगा तो फिर वो डक्टाइल नहीं रहेगा, है ना? तो दिस इज गोइंग टू बी अ डक्टाइल दिस थिंग. ब्रिटल क्या होगा? ब्रिटल वो है जो बहुत उसका इलास्टिक पॉइंट है, प्लास्टिक पॉइंट नहीं है उसका. अभी तो इलास्टिक पॉइंट थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच होगा, उसके बाद वो टूट ही जाएगा, है ना? प्लास्टिक पॉइंट रहेगा तो फिर क्या होगा, लंबा भी हो सकता है, फिर टूटेगा नहीं जल्दी से. दैट इज ब्रिटल. मैलिएबल क्या होता है? जिसको तुम Something that can be beaten into shape. We can draw them into thin sheets. सो व्हेन अ सॉलिड इज कंप्रेस्ड, तो शीट में कैसे बनाते हो, उसको कंप्रेस करते हो तो फैल जाता है. When a solid is compressed, the stage is reached beyond which it cannot regain its original shape after the deforming force is removed. This is the elastic limit point for compression. The solid then behaves like a plastic body. तो वो इधर ही compression वाला हो गया, बाकी दोनों तो elongation वाले, है ना? Elastomers, the materials which can be elastically stretched to large values of strain are called elastomers. उसकी elastic limit बहुत ज्यादा होती है. रबर हो गया. तो ये चार टाइप होते हैं, लिख लो और इनके वो बना लो डायग्राम्स. Sir, are springs also considered elastomers? नहीं, you can actually consider spring minor. So हाँ, in brittle, there is no like B, so we can say that there is no phase where there is where the stress and strain are not proportional, but the elasticity is still retained. So as soon as the stress and strain your are, voice is not clear. Can you say it again? can you hear me now, sir? Yeah. In brittle materials, there is no B, right? So
we can say that there's no phase where the stress and strain are not proportional and the elasticity is retained. So as soon as they are not proportional, the elasticity breaks. Like in Yeah, the so earlier B, one, like in ductile one, B तक जाता है, and then but वहाँ तक वो proportional रहता है. B के after A doesn't remain proportional, but it's still elastic. In here, there's no B, so means as soon as the proportionality there is goes, B the and elasticity. C. Everything is there. Just that they are in a very small domain. Okay. Okay. तो तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसी इलास्टिक, हाँ व्हाट यू सेइंग इज करेक्ट, कि जैसी इलास्टिक लिमिट खत्म होता है तो हो जाती है वो ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाता है, फटीग पे आ जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट पे आ जाता है. Rashid is saying he's feeling weak and headache. Coaxium. Done? So Done, sir. हो गया? I have a doubt. हाँ बोलो. In the brittle materials, Hmm. like
the plastic, the duration of the plastic limit is very, very small. But how come the elastic is also so big? Like, shouldn't that also be tiny? इतने देर तक how can they remain elastic if they are brittle? मतलब इतनी देर तक का नहीं पता ना, वो तो Like in the There's other, no- in the ductile and all that, the A is like really that's small. just a Here they- relative way of showing it. So वो हर मटेरियल का अलग अलग उठा के देखोगे तो अलग अलग ही मिलेगा. So it's not like okay, so for example in brittle, अगर तुम कांच है for example, ठीक है, अभी कांच में मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, तो प्लास्टिक में है कि इलास्टिक में? अभी elastic. क्योंकि डिफॉर्म हुआ है, हमें दिख नहीं रहा है, परमानेंट नहीं हुआ है ना, और बहुत देर तक दबाऊंगा तो अचानक से टूट जाएगा. तो जब तक मैं दबा रहा था तब तक तो वो उस रीजन में था ना, इलास्टिक वाले. ठीक है, वो अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग डिपेंड करे. अभी डायमंड है फॉर एग्जांपल, डायमंड का तो बहुत लंबा जाएगा. So for the malleability one, why are the x and y axes as compression and applied force? क्योंकि शीट बनाने के लिए तुम कंप्रेस करते हो ना, उसको इलोंगेट नहीं करते. इलोंगेट करोगे तो वायर में बन जाएगा. ठीक है, करो. But why is it ulta? क्योंकि कंप्रेस कर रहा है ना, उल्टा डायरेक्शन हो गया फोर्स का. But the compression will still like increase it, no? So why you could draw it ulta? नहीं मतलब अब फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो पहले जो डेल्टा एल था वो नेगेटिव एल हो गया ना, तो उल्टे Oh, क्वाड्रेंट में आ okay. गया. आगे बढ़े. डन. ओके, कौन नहीं है वीडियो पे? कावेरी नहीं. कावेरी. ओके चलो, पहला सवाल. Two identical solid balls, one of ivory and the other of wet clay, are dropped from the same height on the floor. Which will rise to a greater height after striking the floor, and why? सो इसका आंसर कैसे निकालोगे? जब वो इलास्टिक है, अगर कोई चीज इलास्टिक होगी तो इलास्टिक कोलिजन है ना, उसमें क्या होता है कि
if you are dropping it, so there will be force applied, which will deform the body. Now, if that deformation is in the elastic limit, what will happen? The body will try to get back to its original shape, which means it will apply that force again and will come up. But if the body is plastic, you know, in that range, it becomes plastic. इसका मतलब जो deformation हुआ वो हो गया अभी. तो जो energy थी वो तो spend हो गई उधर deform करने में उसको. There's no release of energy again. तो वो वापस नहीं आएगा. So wet clay is plastic in that region and ivory would be elastic. तो ivory वापस ऊपर है. ठीक है? Is stress a vector quantity? No, it is force upon area. Stress is not a vector quantity. It's a scalar quantity. A thick wire is suspended from a rigid support, but no load is attached to its free end. Is this wire under stress? हाँ, इसके ऊपर क्या लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, उसके खुद का वेट लग रहा है. ठीक है? Okay. Stress and pressure are both forces per unit area. Then, in what respect does stress differ from pressure? Cool. Stress is like the opposite of pressure. Pressure is an external No, force. it's not opposite. It's not opposite. Pressure is like what we are applying externally, right? Stress is the resistance that it is showing the object. No. I didn't understand. Say it again. Pressure, when we say that, like, it's an external force that we are applying on the body. हाँ. But like when we say stress, it means that the body is उसका body का resisting force, that will be stress, right? So like तो अगर opposite ये means मैं like इस push that- पेन को मैं खींच रहा हूँ तो वो स्ट्रेस होएगा कि प्रेशर होएगा? खींच रहा हूँ. No, like pressure means उसके ऊपर you have to. जैसे दबाने से प्रेशर लगेगा और Yeah. खींचने से स्ट्रेस लगेगा, ऐसा? No, I don't know. See, that's exactly confusing answer, right? No. So once you apply pressure in a body, the body will try to resist its configuration change, है ना? Body कोई भी चीज चेंज नहीं होना चाहती. That's the law. अगर वो एक स्टेबल एनर्जी पे थी, तो अगर जब तुम उसके ऊपर प्रेशर लगाते हो, चाहे वो खींचने वाला प्रेशर लगाओ, दबाने वाला प्रेशर लगाओ, तो बॉडी अपने डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगी. जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको रेजिस्ट करेगी. तो रेजिस्ट करते हुए जो अपने अंदर से फोर्स लगाएगी, वो उसको कहते हैं स्ट्रेस. ठीक है? Even if you're like pulling the object, still it is like resisting. So that resisting force would be stress. Yes. Okay. Pressure is an external force, while stress is the internal restoring force, which comes into play in a deformed body acting transversely per unit area of a body. ठीक है? Live. Which type of strain is there when a spiral spring is stretched by a force? So spiral spring को तुम खींचते हो तो spring तो ऐसे घूम रहा है और तुम खींच उसको ऐसे रहे हो, तो that is shear string. क्योंकि उस वायर ऐसा है तो उसको हम elongate नहीं कर रहे, हम उसको ऐसे कर रहे हैं. That's why it's shear string. ठीक है? So, but the force is like applied perpendicularly, no? Perpendicular to Perpendicular, like Cross section. downwards, yeah, for like however you're stretching it. but the wire of the spring is like this in this direction, and you are applying force niche, so you're not applying force in the direction of the wire. Yeah, okay. What does the slope of stress versus strain graph indicate? Modulus of elasticity. Okay. Is it possible to double the length of a metallic wire by applying force over it? No, it's not possible. Within elastic limit, strain is only of the order of 10 to the power -3. Wires actually break much before it is stretched to double the length. तो double length नहीं कर सकते हैं. टूट जाए. Okay. अब ये सारे सवाल प्रैक्टिस घर पे करके आओ. अभी करोगे? So I did practice and I had a doubt in question 13. Okay. I got stuck at one point. बाकी लोगों ने प्रैक्टिस किया क्या इस क्वेश्चंस? नहीं किया. तो देखो नई प्रैक्टिस करोगे तो बनेगा नहीं. I was able to do it till like 10, then I stopped.
a wire elongates by L millimeter when a load W is hanged from it. Okay, if the wire goes over a pulley, okay, and two weights W, okay, each are hung at the two ends, then what will be the elongation of the wire in millimeter? Okay, so what is the problem now? So I got it like till the modulus of elasticity, and then I rearranged the formula to get like delta L on one side and like WL upon AE on the other. But I'm not sure where they got like L by 2 from. I was looking at the solution and I did not understand it. Okay, so let me draw. अगर ये वायर ऐसे ही रखा होता तो ऐसे रहता. अब वायर को हमने इधर ऐसे डाल दिया इसके ऊपर. अब हमने वायर को ऐसे डाल दिया है ना. आधा वायर इधर है, आधा वायर इधर है. इसके ऊपर W लगाया, यहाँ पे भी W लगाया, पहले पूरे पे W लगाया. ठीक है, तो ये W वेट लग रहा था L लेंथ पे. अब ये W वेट लग रहा है L by 2 लेंथ. यंग्स मॉडुलस सेम है, तो डेल्टा एल पता चल जाएगा कितना है. हाँ, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन which is W by A into 1 by strain which is L upon small l, this is the change in length, है ना. ठीक है, तो change in length will be equals to EA by WL, right? Hello. Yes, sir. Right. Okay. Abhi on the other side of wire the tension is W and length is L by 2, right? तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये आ जाएगा. तो क्या प्रॉब्लम? तो पहले वाले केस में अगर L लेंथ का हुआ था डिफॉर्मेशन, इस वाले केस में L by 2 लेंथ का होगा दोनों साइड, तो टोटल एलोंगेशन फिर से L का ही होगा, ये बता रहे हैं. ओके, ठीक है. Yes, sir. चलो फाइन. तो अभी हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो मैं तुमको बोलूं कि अभी ये सारे सवाल प्रैक्टिस अभी करो, या फिर मैं आगे का पढ़ा देता हूँ और फिर तुम ये उसको वापस से प्रैक्टिस करो. हालांकि मैंने पहले दिया था तुम लोग को, तो तुम्हें करके आना चाहिए. देखते हैं अभी और क्या क्या. यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस. ठीक है, तो अभी मैं पढ़ा के खत्म कर देता हूँ, फिर ये पूरी चीज तुम लोग प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ बचा नहीं. ओके, मॉड्यूलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. सिंपल. अब उसी मॉड्यूलस का अलग अलग नाम मिलेगा बेस्ड ऑन व्हाट स्ट्रेस आर यू लुकिंग एट, व्हाट स्ट्रेन आर यू लुकिंग एट. सिंपल. ठीक है, ओके. Young's modulus of elasticity. Within the elastic limit, the ratio of longitudinal stress to longitudinal strain is called Young's modulus. तो सीधा खींच रहे हो अगर उसके परपेंडिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर, तो उसमें आएगा यंग्स मॉडुलस. ठीक है, लिख लो इसको. अलग अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, तो पहला है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. उसमें स्ट्रेस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, स्ट्रेन भी जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है. सिग्मा बाय एप्सिलॉन. हो गया.
Yes, sir. ओके, तो पहला हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अभी हर कोई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? कि एक मटेरियल कितना इलास्टिक है वो हमें बताता है, ये मटेरियल प्रॉपर्टी। अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में अलग अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज अ रेशियो बिटवीन longitudinal stress to longitudinal strain. Done. Second one, तो ये सारी चीजें पढ़ लेना, ठीक है? कि सेमी मतलब कुछ नहीं है, सेमी मैथमेटिक्स है जो हमने पहले की हुई है, ठीक है? फिर है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कब आती है? जब हम वॉल्यूम घटा रहे हैं किसी का, बल्क। तो नॉर्मल स्ट्रेस का मतलब है जो सरफेस है, पूरा सरफेस है, उसके नॉर्मल में जो हम स्ट्रेस लगा रहे हैं, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स जो है वो नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो दैट इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसका डायग्राम भी बना दो, जो नीचे डायग्राम बना दो। हो गया? डन? 1 minute, sir. ओके, Done, sir. ओके। Done. Done, sir. Okay, so this is bulk modulus of elasticity. Third is modulus of rigidity or shear modulus. Within the elastic limit, the ratio of tangential stress to shear stress to shear strain is called the modulus of rigidity. क्यों कितना rigid है ना? It is denoted by G or eta. Let us consider a cube whose lower face is fixed and a tangent force F acts on the upper face whose area is A, as shown in the figure. ठीक है? तो ये ऐसा क्यूब है, नीचे वाला फिक्स फेस है, ऊपर वाला ये फेस है, और ऊपर वाले फेस का एरिया है ए। यहाँ पे फोर्स लगाया एफ इधर ऐसे, तो ये मूव किया, ठीक है? सो टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला है भाई, कौन बताएगा? स्ट्रेन का सनत कुमार? So tan theta is करेक्ट, टैन थीटा डेल्टा एल बाय एल। तो हमको यहाँ पे चार चीजें चाहिए, राइट? एक तो कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर वाले फेस का एरिया कितना है, इसका लेंथ कितना है, और इसका डेल्टा एल कितना, ये चार चीज, ठीक है? तो ये हो गया G विच इज शियर मॉडुलस इज इक्वल्स टू F अपॉन A। F क्या है? ऊपर वाले फेस को जो फोर्स लगा। A क्या है? एरिया ऑफ द ऊपर वाला फेस। L क्या है? ये लेंथ, ये वाला लेंथ, नीचे से ऊपर, नीचे वाले फेस से ऊपर वाले फेस तक का लेंथ। और डेल्टा L क्या है? ये जितना लेंथ मूव किया इधर, ठीक है? So what is that N thing called? ईटा, That symbol? ईटा, What? ईटा, ईटा। So can you scroll up one second?
Is this part of a modulus or like what is this? Yeah, all of this is modulus of elasticity. But There are one was three. like Young's. सबसे पहले So what is यंग्स this one? मॉडुलस था, ये नोट किया ना, यंग्स मॉडुलस, हाँ. यंग्स मॉडुलस, ठीक है. What is this one called then? सेकेंड वन कौन सा था? Bulk. बल्क मॉडुलस. और ये वाला कौन सा था? Okay. Modulus. शियर, Shear शियर, modulus. हाँ, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी. So do we have to draw the diagram? Diagram बनाना है ना? Of course, yeah. Do we need to write the whole derivation thing for eta and all that? Like eta is equal to f pi. The whole thing we need to write. डेरिवेशन नहीं है वो, तो बेसिक सी चीज है ना कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस इज एफ बाई ए, स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल, तो हो गया बस. डेरिवेशन क्या? डन. One second. सारे ग्रीक सिंबल्स की ना प्रोनाउंसिएशन में तुम लोगों को भेज रहा हूँ. तो फिर तुम्हें आसान रहेगा, बाद में कभी कोई सिंबल आता भी है तो तुम लोग कैसे कर
सिंपल अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा आयोटा कप्पा लैम्डा न्यू न्यू सही है ओमिक्रॉन पाई रो सिग्मा टाउ एप्सिलॉन पाई साई ओमेगा There's an Omicron also. हाँ तो उसी वो लोग इसी से तो वेरिएंट को नेम कर रहे हैं ना डेल्टा वाज वन वेरिएंट उसके बाद ओमिक्रॉन से Yeah. बीच में भी इतने सारे वेरिएंट हैं मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही ये दो वेरिएंट ही है वो तो जब ये वेव आती है तो एक वेरिएंट को पकड़ के उसके नाम पे डाल देते हैं बट सिर्फ वही एक वेरिएंट थोड़ी चल रहा है अभी जब वेव आएगी उसमें सब मिक्स रहेंगे चलो हो गया हाँ भाई बोलो Once again, could you repeat how to pronounce the X one? I didn't get what that is. Like on the list. Yeah. X Is it G? which one I think it's key. where The अच्छा जो X फोटो भेजा one. उसमें हाँ. अरे तो यार तुम लोग ये सब इंटरनेट पे खुद ही देख लिया करो ना इसलिए तो मैंने भेज दिया हाँ सो इट्स की बाजू में लिखा भी तो है कैसे बाख बाख की तरह है ना लिखा ना अल्फा लाइक फादर एप्सिलॉन लाइक एंड ईटा लाइक हे का एटा एटा जो हे का ए है वैसे ही एटा थीटा लाइक थिक में थ आयोटा में इट जो हम लोग आयोटा कहते हैं वो कह रहा है इयोटा बॉक्स की तरह सी ऑफ की तरह ओमिक्रॉन एनीवे बी डूइंग दिस क्या करना ग्रीक से चलो भाई तो जी है ठीक है विल कॉल इट जी जी इज द शेयर मॉडुलस तो तीन टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ लिए तुमने अभी तक अभी हो गया ओवरऑल फॉर्मूले अभी है पॉइजन्स रेशियो ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक व्हेन अ वायर इज लोडेड its length increases but its diameter decreases the strain produced in the direction of applied force is called longitudinal strain and the strain produced perpendicular in the perpendicular direction is called lateral strain तो जब तुम वायर को खींचोगे तो खींच रहे हो इस तरफ जिस तरफ फोर्स लगाया उस तरफ ही जो स्ट्रेन आ रहा है उसको तो तुम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोल रहे हो बट वॉल्यूम तो सेम ही है ना तो खींच रहे हो अगर और लेंथ बढ़ते आ रही है इसका मतलब डायमीटर कम होता जाएगा तो वहां पे भी डिफॉर्म हो रहा है तो वो वाला जो स्ट्रेन है उसको हम कहेंगे lateral strain okay within the elastic limit the ratio of lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio लिख लो ये पहले के दो पैराग्राफ लिख लो who's not on video please be on video लिख लिया lateral strain to longitudinal strain is called Poisson's ratio अर्नब शाह हुआ So I'm still writing.
Where is all used, like the modulus and the ratio? ये सब यूज किधर होता है, the modulus and this Poisson ratio? हमारी आवाज नहीं आ रही है समझ में, बहुत ही क्रैक हो रहा है. Hello. Can you hear me now, sir? Yeah. Where is all this used, like the modulus and this ratio and all that? To find out कि भाई कब टूटेगी कोई चीज. तुम ब्रिज भी अगर बनाओगे तो तुमको पता चलना पड़ेगा ना कि ये इस ब्रिज का क्या होगा, कितना लोड ले सकता है. हाँ. How is the value of the modulus thing dependent on कब वो टूटेगा and all? सब कुछ टूटने पे तो बेस्ड है इधर. किसी मटेरियल का ये मॉडुलस होता है. उस मटेरियल के मॉडुलस से तुमको पता चलेगा कि इसका हम कितना फोर्स लगाएंगे, कितना एरिया होगा, तब जाके कितना एल होगा. ये सब उसी से तो पता चलेगा. And this Poisson's ratio is that's also the same thing. हाँ, तो हम अब देख रहे हैं कि भाई क्या क्या चेंज होता है किसी भी स्ट्रक्चर में. तुम लोगों ने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया ना. अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा. ये करने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे. अभी हम ग्लास बनाते हैं. ग्लास कैसे बनता है देखा है, मॉल्टन ग्लास. या जब हम किसी चीज को ठोक ठोक के उसको दूसरे शेप में लेके आते हैं, तो उन सब में हमको ये पता तो होना पड़ेगा ना कि इस मटेरियल का है कितना, क्या है. हमको क्वांटिफाई करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा हम कितना बेंड कर सकते हैं, कितना लोड ले सकता है. ये पूरी की पूरी बिल्डिंग से बनी, बिल्डिंग जो बनी हुई है इसी से ही तो बनी है. आरसीसी पता है? आरसीसी क्या होता है? आरसीसी तुम्हारे घर में नहीं सुना है क्या कि इधर यहाँ पे कीला मत ठोको, ये आरसीसी पिलर है. कुछ दीवार होती है, दीवार के कुछ पार्ट होते हैं, यहाँ पे तुम ड्रिल भी करोगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है और ड्रिल ही नहीं होता है. Oh yeah, you have to use a core cutting machine for that. हाँ, तो वो जो बिल्डिंग का ढांचा होता है वो आरसीसी का बना होता है. रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, नहीं रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट है. पीछे बार फॉरगॉट नाउ, मेरे कॉलेज में पढ़ा था मैंने. आरसीसी. Yeah, I heard this like when we moved, we got our ACs refitted. So in one of the walls there was one of these pillars. reinforced सीमेंट कंक्रीट वही है. सो वो बहुत स्ट्रांग होता है. तो उसमें अगर तुम ऐसे उन पिलर्स पे तुम खोदने जाओगे ऐसे कुछ, तो नहीं होएगा बिकॉज इट्स सो स्ट्रांग. तो उसको स्ट्रांग बनाए कैसे, तो कितना स्ट्रांग बनाना चाहिए, इतना स्ट्रांग बना दो जिसकी जरूरत ही नहीं है, तो फिर दैट्स गोइंग टू आल्सो वेस्ट योर मनी, रिसोर्सेज. सो वन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वांटिफाई, है कि नहीं. अभी तुम रोड बना रहे हो तो रोड देखा होगा, कई जगह रोड बने होते हैं, अच्छे रहते हैं, उसके ऊपर ट्रक चली जाती है तो फिर खराब हो जाता है. Why? Because more load than the load it could take. What does it mean by load it could take? Same, कि ये कंप्रेस हो रहा था ऐसे, तो उतने लोड तक तो वो इलास्टिक था, जितने लोड तक हम चल रहे थे उसके ऊपर वो इलास्टिक था, वो दबता था, वापस अपनी जगह आ जाता था. बट जब उसके ऊपर ट्रक चल के गई तो प्लास्टिक रीजन पे आ गया, अब वो फैल गया, तो गड्ढा हो गया वहां पे. गेट इट? तो ये सब प्रिडिक्ट हम तभी कर पाएंगे जब हम चीजों को क्वांटिफाई करेंगे. आया कावेरी समझ में? So हाँ भाई. related to this only, like when you make things like bulletproof glass, like how do you know like how strong to make it, Okay. or So like how much it can take? yeah, I have no experience in making bulletproof glasses, but I can guess that so they would already know what is the normal bullet size, what is the normal bullet mass, and what is the normal bullet velocity with which it can come, right? And then that's it. You create those many layers in the glass that would restrict its motion, and it will not let the bullet pass through it. Get it? Yesterday I was seeing some meme where it was very funny. It was a movie scene from 80s or 90s where Mithun Chakravarti, you know who Mithun Chakravarti is? Is this old-time hero. So some politician is standing behind the bulletproof glass, and he has, Mithun Chakravarti is like a Batman who has called for whole of the crowd, and you know he's challenging the politician, saying that जिस कांच के पीछे तुम खड़े हो वो बुलेट प्रूफ तो है बट स्टोन प्रूफ नहीं है, बट पत्थर प्रूफ नहीं है. फिर पूरे क्राउड उसको पत्थर मारने लगता है और वो कांच टूट जाता है. तो इट वाज वेरी फनी.
but in a way it could work also because the way bullets work and the way stones work are very different. So agar bulletproof glass bhi hoega, so it does not mean that it can just take hell lot of bullets, right? It means that once a bullet is shot, it can take that because it's going to reduce. But that doesn't mean that you can shoot 10,000 bullets at a time and it will still be there, because it's all about momentum and the force that it applies by changing that momentum. Okay, chalo, Poisson's ratio. So now when we stretch a wire, what will happen, Ritu Shankar? Length अगर बढ़ेगा तो diameter बढ़ेगा कि कम होएगा? So कम होगा. Okay, so now if L becomes L plus delta L, the diameter D will become D minus delta D, right? So that's the thing. So sigma, Poisson's ratio is denoted by sigma here, which is lateral strain हो गया minus delta D by D upon delta L by L. कर लो notice. हो गया? So why is it minus delta D by D? बताओ ना. Acha, because it's decreasing. Because the change is minus delta D. It's not plus delta D. अगर तुम कंप्रेस करोगे तो डेल्टा L माइनस हो जाएगा और डेल्टा D पॉजिटिव हो जाएगा. Done, sir. So Done, sir. Okay. shear modulus में, could you explain why we are doing the last step? I didn't understand. What is the last step? F by A into L by delta L. इसमें last step क्या है? No, what? Why we are doing F by A? That I'm asking. What is shear modulus? So when an angle is made. Formula of shear modulus. What stress upon what strain? What? अरे फॉर्मूला क्या है शेयर मॉडुलस का? Which stress upon which strain? I didn't write that. कोई भी मॉडुलस is stress upon strain only, right? Yeah. Then there are different types of stress, there are different types of Yeah. strain. Yeah. उसी के बेसिस पे कौन सा मॉडुलस है वो पता चल रहा है हमको. मॉडुलस इज अ प्रॉपर्टी. अभी हम अगर किसी मटेरियल को पकड़ेंगे उसका देखेंगे कि भाई इसकी अलग अलग स्ट्रेस स्ट्रेन में अलग अलग नंबर होगा. तो यंग्स मॉडुलस हमको क्या बताता है कि उसको अगर परपेंडिकुलरली खींचोगे तो क्या नंबर आएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का. ठीक है. बल्क में हमको ये बताता है कि उसको हर तरफ से दबाओगे तो क्या नंबर आएगा रेशियो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का. कौन सा स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ये बल्क मॉडुलस दिखाएगा. और शियर स्ट्रेस शियर मॉडुलस क्या दिखाएगा हमको? शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन. शियर स्ट्रेस क्या होता है? When like in the diagram how we've drawn like the at an angle we have shifted it, like deformed it. What is stress? What is stress? Like the formula of stress. Yeah, what is stress? Yeah. Force per area of cross section. फोर्स अपॉन एरिया. अभी फोर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, एरिया अलग अलग टाइप का हो सकता है. तो शियर Yeah. स्ट्रेस में कौन सा फोर्स कौन सा एरिया? The हाँ.
क्या Force कंफ्यूजन? means अरे I भाई, like the area. What, like the area of that cube? no, how can a cube have an area, man? Area can be for a face. So just like भाई ये बॉटल है, इधर देखो ध्यान से। yeah. इस बॉटल में मैं बहुत सारी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता हूँ ना। मैं इसके ऊपर की इस तरफ, अगर मैं इस तरफ खींचूंगा उसको अपवर्ड्स, ठीक है, तो इस एरिया के रिलेटिव में ये लॉन्गिट्यूडनल हुआ, Yes. ये लॉन्गिट्यूडनल फोर्स हुआ ना, Yeah. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हुआ। इसमें जो चेंज आएगा लेंथ वाइज वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिखाएगा। Yeah. अभी इस बॉटल के मैं ऊपर खींचने की बजाय मैं इसको साइड से ऐसे शियर दे सकता हूँ, ऐसे ऐसे फोर्स लगा सकता हूँ, है ना, Tangential. टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा। अभी टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा तो ये वाला एरिया के पैरेलल लगा रहा हूं मैं फोर्स, तो ये वाला Yes. स्ट्रेस कौन सा होगा? ये शियर स्ट्रेस होगा। Yeah. तो दैट इज शियर स्ट्रेस। अभी जो इसका स्ट्रेन बनेगा वो क्या होगा? जो ये बेंडिंग होगी क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव होगा, दैट इज शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा। और डेल्टा एल, इस डायरेक्शन में जो डेल्टा एल हुआ अपॉन दिस एल, ये वाला एल, और ये डायरेक्शन में डेल्टा एल हो गया इधर। Yeah. लॉन्गिट्यूडनल में ये डायरेक्शन में डेल्टा एल होता, शेयर में ये डायरेक्शन में डेल्टा एल होता। तो बस वही तो लिखा है, एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल बाय एल। Got it. पॉइजन रेशियो भी हो गया। ओके, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट लॉन्गिट्यूडनल एंड रेडियल स्ट्रेन आर इन ऑपोजिट सेंस, इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेना। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो। रिलेशनशिप बिटवीन वाई बी और जी और सिग्मा। वाई क्या है? Young's modulus. Young's modulus. बी क्या है? Bulk modulus. Bulk's Bulk's modulus. जी क्या है? Shear modulus. shear modulus। और Shear सिग्मा modulus. क्या है? Poisson's ratio. पॉइजन रेशियो। तो हर मटेरियल की ये सारे रेशियोज होंगे, ये हर मॉडुलस, हर रेशियो सब रहेगा हर मटेरियल का। तो फॉर अ मटेरियल दिस इज द रेशियो, ये सारे रेशियो नोट कर लो। तो ये रिलेशन है सारे रेशियोज के बीच का। So can you zoom in a bit? In the fourth one, that's 9 by y, right? या
Done? Yes, sir. Sure. So these are the relations. ये relation use होएगा बहुत सारा आगे. Factors affecting elasticity of a material. Okay. Hammering and rolling. In both of these processes, the crystal grains are broken into small units and the elasticity of the material increases. Okay. Hammer करने से, roll करने से elasticity बढ़ जाती है. Annealing. This process results in the formation of large crystal grains and elasticity of the material decreases. तो बेसिकली जितने क्रिस्टल्स अंदर होंगे उतना इलास्टिसिटी कम होएगा. तो हैमर रोल करने से क्रिस्टल क्योंकि डिस्ट्रॉय हो जाते, छोटे हो जाते हैं, तो इलास्टिसिटी बढ़ जाती है. अनीलिंग में बन जाते हैं और क्रिस्टल्स, तो इलास्टिसिटी कम हो जाती है. प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी, द इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज. टेम्परेचर. Elasticity of most material decreases with increase in the temperature, but elasticity of inward steel, which is an alloy, does not change with the change of temperature. Okay. Energy stored, इसका भी formula लिख लो. Energy stored in a deformed body. Energy stored in a deformed body. तो अभी लिखो elastic potential energy U. Elastic potential energy U is equals to half into stress into strain into volume of wire. Half into stress into strain into volume of wire. तो U by volume करोगे तो क्या हो जाएगा? Potential energy per unit volume, which is denoted by mu. So U by volume is equals to mu is equals to half into stress into strain. So potential energy per unit volume is equals to half into stress into strain. ठीक है? और वहीं से अगर यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है तो हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर. खत्म? डन? Okay. Now I want you guys to do all the example problems first. तो सबसे पहले तो अपनी बुक निकालो सब लोग. And go to page number ये So we don't have this PDF. 352. ठीक है, मैं भेज रहा हूँ. I'll send you this PDF. ये पूरी बुक भेज दिया. ठीक है, we go to page number 352. और यहाँ एग्जाम्पल 1 से चालू करो और एग्जाम्पल 9 तक जाओ, जो एंड है टॉपिक प्रैक्टिस 2 से पहले तक का एग्जाम्पल. ठीक है, I'll give you half an hour to do this. 10 एग्जाम्पल हैं तुम्हारे पास ऑलमोस्ट, पॉइजन रेशियो वगैरह मिला के. मुझे इसका पूरा कॉपी में लिखा हुआ चाहिए सब कुछ. ठीक है, so 9 एग्जाम्पल्स हैं. So I'll give you half an hour. So 4:30 we'll meet. Be in this. Don't leave this. Be here. Half an hour. 4:30. We will meet. So do these 9 examples. 9 examples. ठीक है? चलो करो.
Be on video, people, don't leave video. Be on video. And if you have any doubt, I'm here. Be on video, everybody.
So there are only 6 examples, right? Why 6? 9 है कहाँ तक 6? टॉपिक प्रैक्टिस 2 से पहले तक 9 है. Oh, You've reached 6th. no, I was just checking if it's 9 or not because I saw 6. I'm in the next.